بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں کئی واقعات رونما ہوئے۔ جب رکوبہ سے غامر کی طرف راستے پر تھے تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر دو انتہائی مشہور چور رہتے ہیں۔ ابھی بات کر ہی رہے تھے تو کائنات کے تاجدار کی پاک بارگاہ کے اندر وہ دونوں چور حاضر ہوئے۔ وہ اس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو وہ دونوں چور راستے میں کھڑے تھے۔ ان دونوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ایک دوسرے سے اشارہ کر کے بات کرنے لگے کہ ھذا یمانی، یہ یمانی ہیں۔ تو آقا کریم نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ کائنات کے تاجدار نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ عرض کرنے لگے کہ نحن المہانان، مہان عربی لغت میں ذلیل کو کہتے ہیں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کا بخت بیدار ہو گیا اور کائنات کے تاجدار کے والدہا کے مکھڑے کے صدقے ان کو کلمہ نصیب ہوا اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے۔ اب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم مہانان نہیں ہو بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اب تم مہانان نہیں بلکہ مکرمان ہو، یعنی عزت دیے گئے اور محترم ہو۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی ان کے مقام بدل گئے، اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم دونوں آؤ اور ہمیں مدینے تک چھوڑ کے آؤ۔ ادھر اہل مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے انتظار میں تڑپ تڑپ کے نڈھال تھے، اور ان پر یہ انتظار کی گھڑیاں ایک قیامت برپا کر رہی تھی کہ کب کائنات کے تاجدار کا یہ قافلہ آئے اور ہم والدہا کے مکھڑے کا دیدار کریں۔ عام دنوں میں یہ سفر جو مکہ سے مدینہ تک ہے یہ 12 دنوں میں طے ہو جاتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار چونکہ راستے میں سٹے کرتے آ رہے تھے، اس لیے آپ کو 12 دن سے اوپر کا ٹائم لگ گیا۔ اب ہر روز مدینے کے لوگ ایک کھلے میدان میں آتے اور وہاں سورج ڈھلنے تک آپ کے قافلے کا انتظار کرتے، آخر کار اگلے دن کی امید لے کر پھر واپس چلے جاتے۔ آج 3 دن اوپر ہو گئے تھے اور قافلے کا انتظار کرتے 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 ان کے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے تھے۔ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ نہ پہنچا تو وہ میدان خالی کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ جو ہی میدان خالی ہوا تو اچانک دیکھا ایک یہودی جو ایک اونچے سے ٹیلے پر کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ جو رحمت الہی اور عنایت الہی کے سایہ فگن کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ اس نے دور سے یہ منظر دیکھا تو اس کو پہچان ہو گئی کہ یہی قافلہ ہے جس کا انتظار مدینے والے کر رہے ہیں۔ اس نے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر زور کی آواز دی، ایک نعرہ لگایا، اتنی اونچی آواز تھی کہ یثرب کی وادیاں گونج اٹھی۔ اس نے یہ نعرہ لگایا کہ یا بنی کیلا ھذا جدکم قد جاء، اے بنی کیلا کے فرزندو، تمہارا بخت بیدار آ چکا ہے۔ جس جس کان تک یہ آواز گئی
लोग टोलियों की शक्ल में दोबारा मैदान की तरफ दौड़े ताकि कायनात के ताजदार के चेहरे का दीदार कर सकें। सुबहान अल्लाह। हजरत शेख मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब टीले पर खड़े होकर यहूदी ने ऐलान किया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा मकसद व मकसूद तशरीफ ला चुका है, तो शादमानी की लहर दौड़ गई। अपने हथियारों को लिए हुए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल के लिए भागे चले आए। जवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि जा रसूल अल्लाह, जा नबी अल्लाह, कि अल्लाह का रसूल आ गया, अल्लाह का नबी आ गया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरी उस वक़्त उम्र जो थी वो 9 साल थी और मैंने अपनी आंखों से देखा जबकि सूरज अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो था वो छुप चुका था, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की वजह से, आपके पुरनूर चेहरे के जलवे की वजह से वहां ऐसे लग रहा था जैसे दोबारा सूरज तुलू हो चुका है। सुबहान अल्लाह। लोग आगे आगे बढ़कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का दीदार करने लगे। अब कई लोग थे जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा हुआ था और कई ऐसे थे कि जिनको दिक्कत पेश आ रही थी, तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये भांप लिया और आपने एक चादर के साथ साया कर दिया ताकि मालूम हो जाए कि खादिम कौन है और मखदूम कौन है, आका कौन है और गुलाम कौन है। सुबहान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने जिस बस्ती में नज़ूल अजलाल फरमाया उसका नाम कुबा था। छोटी सी आबादी थी जहां अमर बिन औफ का कबीला आबाद था। यही वो खुशबख्त लोग थे, यही वो खुशबख्त कबीला था जिसने इन मुहाजिरीन की मेजबानी का हक अदा किया। सुबहान अल्लाह। 500 के लगभग अंसार जो थे वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसपास इकट्ठे थे और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऊंटनियों पर सवार हो जाइए, आप अमान में हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलसूम बिन हदम जो कबीला अमर बिन औफ का सरदार था उनके घर कयाम फरमाया। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मेज़बान साद बिन खैसमा था, लेकिन सही बात यह है कि आपने कयाम कलसूम बिन हदम जो कबीले का सरदार था उनके घर रखा और दिन के वक़्त जब मुलाकात करनी होती थी लोगों के साथ तो आप साद बिन खैसमा के घर तशरीफ लाते थे, जो कि एक बहुत खुली सी हवेली थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इधर आशिकों का तांता बंधा हुआ था। लोग जोक दर जोक आकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़याब हो रहे थे और आपके चेहरे पाक के जलवे लूट रहे थे। उधर हजरत अली करमुल्लाह वजहू मक्का के अंदर आपके हुक्म के मुताबिक अमानतें लोगों की वापस कर रहे थे। 3 दिन लगे आपको अमानतें वापस करने में। आपने भी अब इरादा किया कि मैं भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचूं। आपने मक्का से सफर किया और पैदल मदीना तक पहुंचे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पांव इस कदर सूज चुके थे कि आबला पा हो चुके थे और खून रिस रहा था। जब कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हजरत अली करमुल्लाह वजहू के बारे में मालूम हुआ, बताया गया, तो आपने फरमाया कि अली को मेरे पास भेजिए। बताया गया कि वो चल नहीं सकते, उनके पांव इस कदर सूज चुके हैं। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो हाजिर हो गए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए थे, लेकिन बाज़ लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद हजरत अली करमुल्लाह वजहू के पास तशरीफ ले गए और जब हजरत अली करमुल्लाह वजहू के चेहरे पाक को देखा तो कायनात के ताजदार की आंखें अश्कबार हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने हजरत अली को अपने गले से लगाया और अपना लुआब दहन हजरत अली करमुल्लाह वजहू के पांव मुबारक पर लगाया, जिससे आपके पांव फौरन ठीक हो गए और शहादत तक आपके पांव को कोई तकलीफ न पहुंची। सुबहान अल्लाह। ये लुआब दहन की बरकत थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके पांव मुबारक बिल्कुल ठीक कर दिए।
आका करीम दो जहान के सरदार और हजरत अली की तो आपस में मुलाकात हो गई और आप कुबा के मकाम पर थे। उधर मक्का के अंदर कई ऐसे सहाबी थे जो आपके दीदार से महरूम हो गए और तड़प रहे थे, और इस कदर तड़प रहे थे कि कब वो लम्हा नसीब हो हम भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक सहाबी ऐसा था जिनका नाम जज़रा बिन ज़मरा है। आपकी सेहत और तबीयत इस कदर नासाज थी कि ऐसे लगता था कि अभी वक्त मौत आ जाएगा, लेकिन आपने अपने बेटों से कहा कि मुझे मदीना ले जाइए, मुझे कायनात के ताजदार के पास ले जाइए। हालांकि आप बोल नहीं सकते थे, इस कदर आपके वजूद के अंदर लागरी थी और चारपाई पर थे। बेटे सादतमंद थे, उन्होंने बाप की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए चारपाई को उठा लिया। जब चारपाई को उठाकर मक्का से निकले, सिर्फ 10 मील का सफर तय किया, अभी वो बनी गफ्फार के तालाब के पास पहुंचे थे कि उनकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब के इस जान नसार साथी की यह अदा इतनी पसंद आई कि जिब्रील अमीन को महबूब के पास मदीने भेजा और फरमाया कि जाओ जिब्रील, मेरे यार को जाकर बताओ कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं, सूरत उन-निसा की ये आयत नाज़िल हुई कि वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो अपने घर को छोड़कर मुहाजिर ठहरे, सुम्मा युद्रिकुहुल मौत, फिर रास्ते में उनको मौत ने आ घेरा, तो फक़द वाक़ा अजरुहु अलल्लाह, उनका अजर अल्लाह के जिम्मा है। सुबहान अल्लाह। रब्बे कायनात ने उस जानिसार साथी की अदा क़यामत तक कुरान में महफूज कर दी, क्योंकि वो मदीने और मदीने वाले के लिए तड़प रहा था। सुबहान अल्लाह। तो जो इंसान मदीना और मदीने वाले के लिए तड़प रखता है, सिसकता है, रोता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आंसुओं को कभी रैगा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एक एक आंसुओं की कीमत उसको अता करता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मदीने वाले के लिए रोना और मदीने के लिए रोना कोई आज से नहीं, ये सिलसिला मेरे कायनात के ताजदार की जिंदगी के अंदर सहाबा कराम ने इस पर अमल करके दिखाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी मदीने वाले के लिए और मदीने के लिए रोने वाला बनाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी मदीने वाले का शहर दिखाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि।